औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपके लिए इंग्लिश का फिफ्थ लेसन जो पेश किया जाएगा दैट इज़ अबाउट सेलेक्टिंग द राइट करेक्टर दैट इज़ ऑन पेज 106 ऑन योर टेक्स्ट बुक। Career means a profession or a job one selects for to earn his living, यानी अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करने के लिए जो इंसान कोई पेशा अख्तियार करता है दैट इज़ नोन एज career. There was a time when any student's future plans revolved around becoming a doctor, a pilot, or engineer. So, some 20 or 30 years ago, it was very common when a student was to join college. He was asked what was he going to, what will he be going to do. He mostly say that he wants to become a doctor, a pilot, or engineer to serve the nation. These few disciplines were thought to be the only fields that could offer rewarding careers in terms of both respect and money. और यही समझा जाता था कि ये दो पेशे जो हैं इनसे इंसान अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त भी कमा सकता है और पैसे भी. Resultantly, students were unaware of other opportunities that could perhaps have been more advantageous. So, स्टूडेंट्स जो है इस तरह बाखबर नहीं थे उन और पेशों के बारे में जो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे. Today, life has become more dynamic and innovative. Dynamic means active, innovative, creating new things. तो आज ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा मुतहरक है, पहले से ज़्यादा जो है वो उसमें नई चीज़ें आ गई हैं. Gone are days when the medical and engineering fields were the only available choices. अब वो वक्त नहीं है कि जिसमें सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग ही जो है वो इंतखाब रह जाता था. Now a whole world of non-traditional careers from IT, electronic media and web working to online business portals and fashion designing are available for young people. अब तमाम दुनिया में गैर रवायती जो पेशे हैं जैसे IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे आप देखते हैं डिफरेंट चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं इस तरह के, और उसके अलावा बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं जो इस तरह फैशन डिज़ाइनिंग भी और बहुत सारे और दूसरे पेशे हैं जो कि रवायती तौर पर पहले नहीं थे जो कि आज दस्तयाब हैं. However, there still remains the question of choosing the right profession. लेकिन फिर भी ये सवाल बाकी रहता है कि सही पेशे का इंतखाब कैसे किया जाए. Unfortunately, the most of the right career merely means a profession that guarantees a profitable livelihood. आम तौर से ये समझा जाता है कि अच्छा पेशा वही है जिसमें इंसान अच्छा तरह से एक मुनाफाबख्श कमाई कर सके और ज़िंदगी गुजार सके. बट कंसिडरेशंस लाइक इंटरेस्ट इन जॉब एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन शुड आल्सो बी गिवन इम्पोर्टेंस. लेकिन इन चीज़ों को भी तरजीह देनी चाहिए कि किसी पेशे में आपका उसको जानी आपको आसूदगी कितनी मिलती है और उसमें आप उसको कितनी अहमियत देते हैं, क्योंकि इंसान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसको सारी ज़िंदगी करना पड़े एंड ही इज़ नॉट interested at all in that. The scope of only field in terms of market demand should also be considered very seriously. You should know that you are going to acquire the education. What would be its acceptability in the future? यानी आने वाले 5-10 साल में उसके लिए आपके पास क्या आप गुंजाइश होगी कि आप वो कुछ पढ़ने के बाद अपने आप को मार्केट में पेश भी कर पाएंगे. We cannot practically deny the significance of hiring trends. Hiring trend means what will be their use in the market. For example, a decade ago, when computer science professionals were in demand, masses of MCS, Master of Computer Science students, flooded the market with extremely disappointing results. तो स्टूडेंट कुछ एक दहाई पहले जब कंप्यूटर जो है इसके बारे में था कि जी कंप्यूटर का आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो थे कंप्यूटर पढ़ने के लिए मार्केट में आ गए, और जब वो मार्केट में पहुंचे तो उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत थी कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर नहीं चाहिए थे. Career counselors are generally well informed about such trends. Friend, counselors are the experts who can give you advice to choose the proper profession. They can play a key role in guiding the youth towards rewarding profession, और किसी भी अच्छे पेशे की तरफ वो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं. This highlights the importance of a full-time career counseling department at the school level. और इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है कि स्कूल की सतह पर कैरियर काउंसलिंग का शोबा होना चाहिए. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बड़े स्कूल जो उनमें है जबकि दूसरे मुल्क में ये बाकायदा से मौजूद है. जॉब ऑफ दिस डिपार्टमेंट
should be to uh, determine the personalities of students, to observe and analyze their interests, and to suggest suitable careers according to their aptitude. Attitude मीन्स ट्रेंड्स। ये उस शोबे के ज़िम्मे काम होगा कि वो तलबा जो हैं उनकी सलाहियतों को परखे, जांचे, उनकी दिलचस्पियों को देखे, उन शख्सियत का तजिया करे, फिर उनके लिए मौजूद पेशे का मशवरा दे। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स इन अ फिक्स व्हेन डिसाइडिंग ऑन अ करियर। इन अ फिक्स मीन्स इन अ ट्रबल, इन अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। तो बहुत सारे वालदेन तलबा अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में पाते हैं जब उनको किसी पेशे का अपने बेटे के लिए इंतखाब करना होता है। पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशन सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसिप्लिन। तो इसी तरह से वालदेन जो होते हैं वो उन रुझानात से वाकफ़ नहीं होते हैं, तालीमी जो निज़ाम है उनसे वाकफ़ नहीं होते हैं, और ये कि उस शोबे के लिए आगे कितनी सारी गुंजाइश मौजूद है। Similarly, 14 to 15-year-old students are not mature enough to make such life-changing decisions. और फिर 14-15 साल कोई तालिब इल्म इस काबिल नहीं होता कि वो इतना बड़ा फैसला ज़िंदगी का कर पाए। So it is widely felt that career counseling must be promoted from school level. So it is the need of the time that the career counseling department should be established in school to guide the students. Once a field has been selected, the next step is to enter that particular field. जब एक शोबे का इंतखाब हो जाए फिर ये कि उसमें कैसे दाखिल हो जाए। Which degrees, certificates, courses and subjects should be opted for? What will be prerequisite for them? यानी कि उसके लिए पहले से क्या आपको तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है आपने। A student should also consult successful students and professionals of that particular field. तो उस सूरत में आपको चाहिए कि उस शोबे में जो पहले काम करने वाले लोग हैं और शोबे में जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनसे सीनियर, उनसे रहनुमाई लें। फॉलोइंग इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस। यहाँ पर हम कुछ पेशों के बारे में कुछ आपको मालूमात देंगे। दिस इज़ प्रोफेशनल्स टू नो द मोस्ट सुटेबल पाथवे फॉर देयर सिलेक्टेड फील्ड। और उनसे पूछा गया कि कुछ जो माहिरीन थे कि उन्होंने इस पेशे का इंतखाब कैसे किया। This is the outcome of a survey conducted among senior students and professionals to know the most suitable pathway for their selected field. Chartered accountancy, CA, undoubtedly one of the toughest and most highly paid professions. And this degree consists of 8 years of education. It's a very difficult degree, very hard to study, but it is very rewarding. Maybe started directly after the completion of the intermediate or equivalent education, और ये आपकी 12 साल की तालीम के बाद शुरू हो सकती है। However, according to experts, 12th grade with business such subjects like accountancy, business, statistics, commercial geography, etc. are the best route to a CA degree as it helps build concepts. Students, you have to study subjects like statistics, commercial geography, business. Similarly, you must have a good background of mathematics. The business studies and IT, information technology fields also confuse young minds with a wide range of sub-disciplines. और IT और इस तरह के जो शोबे हैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि वो उन्होंने इसमें क्या कुछ है वो पढ़ना, और वो चीज़ें आपस में गड़बड़ हो जाती हैं उनसे। MPA Master of Business Administration, MBIT Master in Business and Information Technology, MSCIT Master of Sciences in Information Technology, and MSc Master of Computer Sciences should ideally be followed by BCom, Bachelor of Commerce, BBA, Bachelor of Business Administration, BBIT, Bachelor of Business and Information Technology, and BCS, Bachelor of Computer Sciences. Student, you have to complete the 16 years of education after going to do masters in MBA or in any other discipline. The engineering field has also been introduced to new areas like biomedical engineering. आप इंजीनियरिंग का शोबा जाओ उसमें बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो मुतारफ़ कराई गई हैं, जैसे कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वगैरह. अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चर डिसिप्लिन हैज़ आल्सो बीन डेवलप्ड फॉर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. और प्री इंजीनियरिंग जो तालिब इल्म हैं उनके लिए ज़राअत के शोबे में भी बहुत सारी नई चीज़ें मुतारफ़ कराई गई हैं. Mass communication is certainly one of the fastest emerging industries in the world. और मीडिया के बारे में जो है वो ये इंडस्ट्री जो दुनिया में एक बड़ी फलती फूलती पाती हुई इंडस्ट्री है. दिस फील्ड इज़ हाईली रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रेस्पेक्ट एंड मनी. और इसमें आप इज्जत और पैसा दोनों कमा सकते हैं. Unlike other disciplines, mass communication does not require a particular line to study.
दूसरे शोबों की तरह मैथ कम्युनिकेशन में या बलागे आमा के पढ़ने के लिए आपको किसी ख़ास शोबे में ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। यू में जॉइन इस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc। और आप BA BSc करने के बाद आप या BCom करने के बाद शोबे में आ सकते हैं। फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ emerged as सेपरेट इंडस्ट्री। और फैशन और डिज़ाइनिंग वाला एक अलग इंडस्ट्री है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमाज इन फैशन डिज़ाइनिंग। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो आपको डिप्लोमा और डिग्रीज इसमें आप दे रही हैं। सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर, मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न only money from your career but also mental peace and satisfaction। किसी भी शोबे का इंतखाब करने से पहले ये आप ध्यान में रखेंगे, आपने ना सिर्फ उसमें पैसे कमाना है बल्कि इज्जत और जहनी आसूदगी भी होनी है। इट इज़ ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ, यानी बाय दिस वे यू कैन लीड अ टेंशन फ्री लाइफ। So in lesson we have read, in the next lesson we will do the exercise. Now I will allot you some homework. Homework is that grammar and composition page 43. You have to do the exercise 12. You have to do comprehension. You have to answer the questions, give the summary of the given paragraph. That should be 1/3 of the paragraph, and given the suitable title also. And next, on the page number 160, आपने प्रपोजिशन वर्ब जो है 20 to 30 जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। उनके क्वेश्चन आपने उनके सेंटेंसेस आपने फॉर्म करने हैं और ये आपका होमवर्क है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो है उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।